सब लोग अब वो सब मत करो। क्लास आना नहीं है और समझ यूज कर रहे हैं सर। आवाज उसमें आता होगा सर? नहीं आ रहा, झूठ क्यों बोलेंगे? आपको सर नहीं आ रहा सर? उसका लगा नहीं होगा पिन अच्छे से। इधर है सर, पिन से हटा होगा। क्लास में जाने की जल्दी मत करना कि 1 बजे ही भागने के चक्कर में आ जाना। आ रहा है। हेलो क्लास छोड़ो हटाओ, कोई इधर से रिस्पांस करो। हेलो क्लास आ रही है, आवाज आ रही है। कोई रिस्पांस करो। छोड़ो भाई, तो दिक्कत लैपटॉप में हमारे सर। ये काम कीजिए सर, इससे सर क्या करना होगा? स्पीकर ऑफ कर दें? हाँ जी, चलो कर दिए। हाँ, आवाज मिल रही है सब लोग को? MIS का स्क्रीन शेयर हो गया? यस सर। हाँ, वीडियो ऑफ करने दो सर का। वीडियो जा रहा है तो म्यूट करेंगे। अच्छा, MIS, हाँ इधर ध्यान दो, मोबाइल आज कम से हटाओ। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, क्या कहें सर? नहीं, हम वर्कशॉप में नहीं है, BBA के क्लास में है। जी सर। हाँ, कहाँ आवाज आ रहा है? क्या बोले? हाँ, अब बंद करो सब कुछ। आप लोग सब फ्रंट की तरफ मूव कर जाओ, आगे की तरफ देखो सब। आवाज आ रही है। और किसी को भी ऑनलाइन में जितने बच्चे बैठे हैं और क्लास में जितने बच्चे, किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन स्टॉप मी देयर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ MIS। MIS क्या? व्हाट डू यू मीन बाय MIS? MIS is a study of people, technology, organizations and the relationship among them in broader sense. ये सब देखा हुआ है सर, देखे हुए हैं क्या? वही हम समझा रहा हूँ। तो then we can say that MIS is a combination of people, process, technology, hardware, software, etc. जैसे MIS क्या है? If a company wants to take some decision, if a company person wants to take some decision, then he has to collect the data, then he has to gather the information, and from where information will become? Information will become through the web media, web information technology, newspaper, web application, and end user. Just a minute. When we are watching some graphics, when we are watching some images, means through images we can get the information. If we watch some image,
Image gives you all the information. If a child wants to learn anything, if you show the image of any particular animal, any particular object, then a children can learn easily. So MIS is a process of analyzing, collecting, MIS is analyzing, collecting, processing, and all operations performed by the top level management, and top level management take decision on the basis of information, on the basis of information. In old days, म्यूट हो जाए, म्यूट हो जाए, okay, हो गया. In old days, when there was the no computer system and nothing was, then all information was on the pen and paper. But now a current scenario, you think that any company like Reliance company, Ola company, OLX company, any company wants to take the decision for the business, then how he will take the decision? He will collect the information, then he can take the decision. Otherwise, he cannot take the decision. Company like any company, I know about you that you are studying or not studying. How I will take the decision that how you is your performance? You tell me, sir, I am not getting or I am getting. On that basis, I can say that, okay, if you are not getting through this process, I will teach you like this process. Okay. So MIS क्या है? MIS एक डेटा कलेक्शन सेंटर की तरह डेटा कलेक्शन किया, उस पर एनालिसिस हुई, रिट्रीविंग हुई, कैलकुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, उसके बिहाफ पे डिसीजन होता है. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? MIS इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम. जैसे समझ में आ रहा है? तो MIS इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है. जैसे आपके कॉलेज में सिमेज कॉलेज का उसका एक MIS सिस्टम होगा जो सारा इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट का रखता होगा कि इस बच्चे के पास कितने किताब हैं, किस सेमेस्टर में बच्चा है, इसके मार्क्स कितने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, और लास्ट में आपकी मार्कशीट बनती है. क्या है? दैट इज ए MIS सॉफ्टवेयर. आपका बैंकिंग में जो एप्लीकेशन चल रहा है, आपके अकाउंट में कितने पैसे क्रेडिट हैं, कितने पैसे डेबिट हो रहे हैं, ये क्या है? MIS है. क्या है? MIS है. ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ बोलो. ऑनलाइन. यस सर. अमीशा. अमीशा. Yes, sir. MIS क्या है? MIS is a software system that focuses on the management of information technology to provide efficiency and effectiveness or a strategic decision making. तो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है. डिसीजन मेकिंग मतलब रिलायंस कंपनी हो गई या कोई और कंपनी हो गई, उसको कोई बड़ा लॉन्ग रेंज पॉलिसी बनाना है, वो कैसे बनाएगा? हाउ ही विल क्रिएट. वो पुराना प्रीवियस डेटा लेगा, पुराना प्लानिंग होगा, पुराना डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा, उसको एनालिसिस करेगा, डिजाइनिंग करेगा, टेस्टिंग करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, वैलिडेशन करेगा, तब तो इंप्लीमेंटेशन होगा. जैसे रिलायंस कंपनी ने पहले उसने जियो नेटवर्क पे इंटरनेट फ्री किया, अब क्या है? कंपनी इज पेइंग फॉर दैट. इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी ने डिसीजन लिया, उस हिसाब से लिया ना. तो जो भी कंपनी है, आप पढ़ाई करते हो तो आप देखते हो कि मार्केट में कौन सा कोर्स डिमांडेबल है, उस टेक्नोलॉजी को पढ़ना चाहते हो. पढ़ना चाहते हो कि नहीं? आपके पास इंफॉर्मेशन आता है तब कि नहीं? तो वही MIS हो गया. क्या हो गया? MIS हो गया. जैसे आज PMCH हॉस्पिटल है, IGIMS है, सबका वेब एप्लीकेशन है कि एक साल में कितने मरीज आए, किस डिपार्टमेंट के मरीज आए, ENT के हैं, हार्ट के हैं, लीवर के हैं, वेंस के हैं. तो क्या है? दैट इज MIS. दैट इज MIS.
देखो, द टर्म इज ऑफन यूज्ड इन द एकेडमिक स्टडी ऑफ बिजनेस एंड हैज कनेक्शंस विथ अदर एरियाज सच एज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, ई कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। ई कॉमर्स क्या है? आप अपना सामान ऑर्डर करते हैं, आप अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, वो प्रोडक्ट कहां तक पहुंचा आपका ट्रैक होते रहता है, आपको इंफॉर्मेशन आते रहती है, आती है कि नहीं? Yes, sir. दिस इज एन MIS। हाँ, तो MIS क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? आप लोग बताइए, MIS क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर। वेरी गुड। अब इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना? नो दी फंडामेंटल मैनेजमेंट कंसेप्ट्स, अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कोर नॉलेज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कोर नॉलेज इन इंफॉर्मेशन systems, understand and apply decision principles in information systems, identify the basic concepts of management information system। तो इसके बाद हम MIS इंप्लीमेंट करना चाहेंगे भाई, MIS इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी हमें? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर यूजर पड़ेगी जरूरत, नेटवर्किंग पड़ेगी ना, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। जब आप MIS अप्लाई करोगे तो MIS दो प्रकार का होता है, वेब एप्लीकेशन में भी, ERP में भी। क्या होता है? वेब एप्लीकेशन और TRP दोनों में होता है। वेब एप्लीकेशन में जैसे आप कोई डेटा भरते हो, आप अपना सारा डेटा एग्जाम फॉर्म भरते हो, उसमें क्या होता है? नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आपके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, आप सब कुछ डालते हो, भरते हो कि नहीं? आप सब कुछ भरते हो। तो क्या है आपके, उसके बाद आपको एक प्राइमरी नंबर दिया जाता है कि इसके थ्रू आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाद में इसके थ्रू आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये प्राइमरी नंबर मिलता है आप लोगों को। आप भी कम्युनिकेशन करते हैं, जब आपका फॉर्म भरा जाता है तो कहा जाता है कि सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर कुछ मिलता है। Yes, sir. आप उस एप्लीकेशन से फर्दर कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हो MIS से, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो MIS क्या हो गया? MIS भाई क्यों ऐसा कर रहे हो यार? लास्ट पीरियड है, थोड़ा आराम पढ़ लो। MIS इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, प्रोसेस। लिख सकते हो तो लिख सकते हो, MIS इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, प्रोसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड एंड यूजर्स। किसी को दिक्कत हो रहा है तो बताओ निशा। क्या यहाँ तो सब एक्सपर्ट हैं। बेसिक चीज में दिक्कत हो गया इन लोग को, क्या हम बोले हैं? ठीक है, कि पहले बोल देती तो हमें दिक्कत थोड़ी होता है। क्या हुआ? ऑनलाइन क्या प्रॉब्लम हुई? नोट कैसे बोलते हैं? हार्डवेयर के बाद बोले। Yes, sir. लिख, सुन लो, MIS इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो MIS इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, कॉमा, प्रोसेस, कॉमा, हार्डवेयर, कॉमा, सॉफ्टवेयर, कॉमा, हार्डवेयर के बाद MIS के कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, कॉमा, पीपल लिखे, पीपल, कॉमा, प्रोसेस, कॉमा, हार्डवेयर, कॉमा, सॉफ्टवेयर, कॉमा, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कॉमा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड एंड यूजर्स
समझ गए? अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स मैनेज मैन टैक्टफुली। ऑर्गेनाइजेशन में जितने मैन है उसको हम लोग कैसे टैक्टफुली मैनेज करें। देखो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। रिपीट करिएगा सर एक बार। मैनेजमेंट मीन्स आगे सर। मैनेज मैन टैक्टफुली। मैनेज मैन टैक्टफुली। ठीक है? जैसे क्या क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, प्लानिंग। सेकेंड पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग। फ्रूट एंड नट्स हमारी भाभी है। सर ये तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है सर। हाँ, तो मैनेजमेंट क्या है कि मैनेज मैन टैक्टफुल। आप कैसे मैनेज करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, सब है कि नहीं? सर तो आईटी में क्या करेंगे सर? यस सर। भाई तो MIS जो है आप लोग का, जो IT में क्या हो रहा है, तो एप्लीकेशन में जैसे हम लोग फिंगर करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं थ्रू द फिंगर बनाते हैं। रोहित वो सिस्टम में डेटा कलेक्ट हो गया, तो उसके थ्रू हम डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं, ये बंदा कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। जैसे क्लास आप लोग CRC बनाते हैं। क्या हुआ? आप लोग CRC फॉलो करते हो, उसमें क्या करते हैं, आज कौन सा सब्जेक्ट हुआ, कौन सा टॉपिक हुआ, कितने बजे टीचर आए, कितने बजे तक क्लास चली, होता है कि नहीं ये चीजें? तो प्लानिंग है कि नहीं, ऑर्गेनाइजिंग है कि नहीं, डायरेक्टिंग है कि नहीं, कंट्रोलिंग है कि नहीं, स्टाफिंग। फ्रूट एंड नट्स हमारी आज भाभी कोई है। कौन कितना खाली है, कौन टीचर किस समय खाली है, कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है, सब कुछ प्लानिंग है। इंफॉर्मेशन तो पता होगा कि नहीं पता है? पता है सर, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। Yes, a processed form of data. प्रोसेस्ड डेटा समझते हो आप लोग? प्रोसेस्ड डेटा, यस सर। Yes. प्रोसेस्ड डेटा और मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। लिखना है तो लिख सकते हो, प्रोसेस्ड डेटा और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला राम, मैंने केवल बोला रिलायंस, एक डेटा है, बट बोला रिलायंस इज ए बिग कंपनी ऑफ इंडिया, दिस इज एन इंफॉर्मेशन, है कि नहीं? मैंने बोला इन्फोसिस इज ए बिग सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। बोलो। कोई क्वेश्चन है क्या आप लोग का? अब आई सिस्टम। Yes, sir. देखो कोई भी सिस्टम आप ले लो, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, बुक मैनेजमेंट सिस्टम, एवरीथिंग इज ए सिस्टम, एवरीथिंग इज ए सिस्टम। अब सिस्टम क्यों डेवलप किया जाता है? सिस्टम डेवलप किया जाता है कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सिस्टम डेवलप किया जाता है कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, बोलो। जैसे हमारे पास कार है, हमारे पास मोबाइल है, तो ये एक सिस्टम है। इसका काम क्या है? डायल, कॉल रिसीव करना, कॉल करना,
मैसेजेस देना लेना, तो दिस इज ए सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को? Yes, sir. तो जो भी हम एक कार बनाते, दैट इज ए सिस्टम। MIS भी क्या है? एक सिस्टम है। और सिस्टम, कोई भी सिस्टम का डेवलपमेंट हम इसलिए करते हैं कि हमें कॉमन गोल या कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बात समझ में आ रही है? इसको लिखना लिख सकते हो। आप लोग को मैंने शेयर कर दिया ये चीज, आप लोग के पास है ना? Yes, sir. नहीं समझ में आता सर। तो अच्छा, मैंने बताया सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स ज्वाइंड टुगेदर फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव का मतलब किसी खास लक्ष्य के लिए कोई चीज बनाया जाता है। ठीक है, सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स ज्वाइंड टुगेदर फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जैसे पेरोल सिस्टम है, इन्वेंट्री सिस्टम है, मंथली अटेंडेंस सिस्टम है, सबका काम है कि नहीं अपना? यस या सर। चार मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सिस्टम कोई सा, एक कार ली, एक कार बनाया गया तो उसका भी सिस्टम है, तो उसको चलना है। ठीक है, बाइक बनाया, उसका काम है चलना। मोबाइल का एक सिस्टम है, लैपटॉप क्या है? सिस्टम है। कंप्यूटर का एक सिस्टम है जिसका खास अचीव काम क्या है? कोई गोल को अचीव करना। समझ गए? यस सर। Yes, sir. अब देखो, एक ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरएक्टिंग एलिमेंट्स। सर एम आई। सुनो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। इससे पहले जो मैनेजमेंट बताया तो उसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट है सर, जिसमें 3 मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट तो सर हम लोग पढ़े हुए हैं सर। ऑपरेटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग मैनेजमेंट ये होता कि ऑपरेशन जो होता, ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द लो लेवल मैनेजमेंट। जैसे एक कंपनी है, वो कार बनाती है, दैट कंपनी इज डेवलपिंग कार, दैट कंपनी इज मेकिंग लैपटॉप। तो लैपटॉप जब कंपनी बना रही है तो जो लास्ट वर्कर है वही तो असेंबल करेगा लैपटॉप को, मदरबोर्ड डालेगा, चिप इसके अंदर डालेगा, इसके अंदर मेमोरी डालेगा, इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालेगा, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालेगा। तो कौन डालता है? ये ऑपरेशन लेवल पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को? सर मिडिल लेवल भी तो डाल सकता है सर सॉफ्टवेयर। मिडिल लेवल इज यूज फॉर, वो जो टॉप लेवल ने उन्हें आदेश दिया, टॉप लेवल ने जो उन्हें काम दिया, मिडिल लेवल को है कि उस काम को एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट का मतलब उस काम को पूरा करवाना है, उस काम को। हाँ, तो मिडिल लेवल सुपरवाइज का काम कर रहा है। ठीक है, ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लो लेवल जो ऑपरेशनल लेवल, वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब है a group of interrelated or interacting elements forming a unified whole business organization as a system. भाई साहब, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक सिस्टम है। आप मान लीजिए रेलवे का टिकट बुक करवा रहे हैं, रेलवे का टिकट IRCTC से बुक करवा रहे हैं, तो क्या है? दैट इज ए सिस्टम। दैट इज ए सिस्टम कि आपका पैसा डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, तब आपका टिकट बनेगा। रेलवे में मतलब सीट वैकेंसी खाली होगी तो रेलवे में जगह मिलेगी। ठीक है, नहीं तो वेटिंग में चली जाएगी। नहीं तो वेटिंग में। तो क्या है? दिस इज ए सिस्टम। इसमें कितने चीज लगे हुए हैं? इसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, नेटवर्किंग भी है, यूजर्स भी है, सब कुछ है कि नहीं? यस सर। क्या क्या बोल रहे हो? अब देखो, सिस्टम का मतलब एक ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड, इसको लिखो मत, लिखा हुआ नोट्स लिया हुआ। A group of interrelated components working together towards a common goal by accepting input and producing output in an organized transformation process. जैसे हम लोग एक कार बनाते हैं, कार में कितने कंपोनेंट लगे होते हैं? मोर देन 1000, मोर देन
1000 कंपोनेंट लगे होते हैं, पर उसका काम क्या है कि कार को चलाना, कार को चलना। लैपटॉप में कितने कंपोनेंट लगे हुए थे? मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, बस है, हार्ड डिस्क है, डेटा बस है। पर काम क्या है लैपटॉप का कि इसमें काम होना चाहिए, इसमें प्रोसेस चलना चाहिए। ठीक है, कॉमन गोल क्या है? प्रोसेस का चलना। कॉमन गोल क्या है? प्रोसेस का चलना। तो एक ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल बाय एक्सेप्टिंग इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट इन एन ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आई कि मैनेजमेंट कंसेप्ट आप क्या है? मैनेजमेंट से क्या समझते हैं आप लोग? मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है ना। यस देखो, और जितना भी बिजनेस यूनिट है, जितने भी बिजनेस चलते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितना भी बिजनेस चलता है, चाहे कंपनी, हाँ भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है, समझ गए? उससे प्रॉब्लम है, तुम आगे आगे बैठ जाओ, वो बिजी हो जाएगा अपने आप में। हाँ, जितने भी बिजनेस, एवरी बिजनेस यूनिट है सम ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स ओन। जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा है, चाहे कोई भी सीमेंस कॉलेज है, चाहे आईआईटी है या एनआईटी है, जितने भी कॉलेज है, सबका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं? यस सर। कि जैसे 3 इयर्स हो या 4 इयर्स का कोर्स हो या 5 इयर्स का कोर्स हो या 6 इयर्स का कोर्स हो, सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो जितनी भी बिजनेस इंडस्ट्री है दुनिया में थ्रू आउट द वर्ल्ड, सबकी बिजनेस इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है। रिलायंस सोचती होगी कि आफ्टर 10 इयर्स हम कहाँ रहेंगे, कितनी बड़ी कंपनी रहेंगे। टाटा सोचती होगी, बोल रहा है, हाँ विनोद बोलो। नो सर, नहीं बोल रहे। कुछ बोलना है विनोद? नो सर, नो सर। तो आप लोग, every business unit has some objective of its own. These objectives can be achieved with a coordinated efforts of some several personnel. देखो, जितने पर्सनल होते हैं, तो एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव, जैसे मान लीजिए सेवरल पर्सनल, मतलब काफी सारे लोग मिलके करते हैं, डायरेक्टर लेवल से लेके लो लेवल पर्सन तक, एक क्यून तक भी उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करते हैं कि नहीं? डायरेक्टर ने प्लानिंग बना दी, लेकिन अगर मैनेजमेंट मिडिल लेवल लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं किए और लोअर लेवल ऑपरेशनल लेवल पे एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं? तो जो आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाएगा? नो सर। नो सर You can't achieve that common objective. ठीक है, इसमें मैनेजर भी होते, डायरेक्टर भी होते, वर्कर भी होते, एचआर पर्सन भी होते, सेल्स मैनेजर भी होते, टेस्टिंग टीम भी होती, टेक्निकल टीम भी होती। सब लोग जब एक पार्टिकुलर गोल की तरफ बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के एफर्ट को, मतलब कोऑर्डिनेट एफर्ट होगा सेवरल पर्सनल का, तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। The works of a number of persons are properly coordinated to achieve the objectives through the process of management. ठीक है, बात समझ? किसी को दिक्कत है तो पूछो, बाद में नहीं कि नहीं समझे। अभी किसी को दिक्कत है ऑनलाइन में तो यू कैन आस्क मी, एनी स्टूडेंट। बाद में नहीं कि सर नहीं समझे, आप तुरंत पूछिए, मुझे रोकिए कि सर ये नहीं समझे। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? यस सर आप जैसे घर में ही काम करते हैं, घर में ही कोई शादी विवाह या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो पापा का मैनेजमेंट कुछ और, मम्मी का मैनेजमेंट कुछ और, भाई का कुछ और, बहन का कुछ और, सब लोग मिल के करते हैं, तब जाकर काम आपका सक्सेस होता है कि नहीं? Yes, एक sir. आदमी नहीं सक्सेस करा पाता।
तो जैसे फैमिली फंक्शन भी मैनेजमेंट के बिना नहीं चल सकता, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेंगे? Yes. मान लो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और टेक्निकल टीम जो प्रोग्रामर टीम है उसने तो प्रोजेक्ट बना दिया, टेस्टिंग टीम उसको चेक नहीं करे, इम्प्लीमेंटेशन टीम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करे, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेस होगा? No, sir. तो शुरू से लेके मतलब बिगिनिंग से लेके प्रोजेक्ट मैनेजर, टेस्टर, डेवलपर, कोडर, सबको मिलके चलना होगा। और जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि इसमें कितने लेवल होंगे, कितने टेक्स्ट बॉक्स होंगे, उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ए वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन। तो आप जब तक मैनेजमेंट लेके नहीं चलेंगे तो आप नहीं चल पाओगे। क्यों? कि थ्रू मैनेजमेंट वी आर ऑर्गेनाइज्ड आवर ग्रुप एक्टिविटी। थ्रू मैनेजमेंट वी आर ऑर्गेनाइज्ड आवर ग्रुप एक्टिविटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? It is management regulates man's productive activities through coordinated use of material resources. Material resources का मतलब क्या हो गया? पैसा, मनी, गुड्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, सब कुछ। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? तो जब तक मैनेजमेंट में सब जितने भी टीम है, या चार टीम मैनेजमेंट सब मिलके इंटीग्रेटिंग होके काम नहीं करेंगे, तो क्या अपन लोग जो कॉमन गोल है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वो वहां तक जा पाएंगे? No, sir. नहीं सर। बंद करो। मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेटिंग फोर्स इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। इस लाइन में किसी को डाउट? Yes, sir. So economic life of man का क्या क्या? मतलब है? The economic life of man से ऊपर है। इकोनॉमिक, सर बोलो, स्लाइड बोलो। ऊपर कीजिए, सर स्लाइड ऊपर कीजिए, नहीं दिख रहा है इसमें। अब और दिख रहा है? नो सर, नीचे नहीं सर। ऊपर करेंगे, नीचे और यस सर, यहाँ सर यही पे सर, मैनेजमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन। ठीक है, इस लाइन को मैं समझाऊं? यस सर। आप अगर मैनेजमेंट करके नहीं चलेंगे, अगर आप मैनेजमेंट करके चीजों को नहीं चलेंगे, इकोनॉमिक लाइफ को, आपको कितना, आप मान लीजिए एक बेसिक सा क्वेश्चन समझिए कि आप मंथली 40,000 मंथली पैसा कमा रहे हैं, आपको उसी में रूम का रेंट भी देना है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा भी देना है, खाने पीने का पैसा लगाना है, फूडिंग भी करना है, लॉजिंग भी करना है, फैमिली को भी देना है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है। तो आप ये तो प्लान करके चलोगे ना कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए आपको पेरेंट्स को 10,000 देना, आप दे दिए 20,000, क्या होगा उस महीने? आपका इकोनॉमिक लाइफ, उस महीने आपका इकोनॉमिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं? तो आपको हर लाइफ हो या इंडस्ट्री हो या पर्सनल लाइफ हो, हर जगह मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। समझ गए कि नहीं आप लोग? यस। तो आप MIS का मतलब यही समझ लो कि मैनेजमेंट विथ IT, मैनेजमेंट विथ, बोलो, IT। हाँ, MIS का मतलब यही हुआ, मैनेजमेंट विथ IT। ठीक है, लिख सकते हो। और MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बात समझ में आ रही है? अब बोलो। क्या? अब बोलो ना। आवाज आ रहा है बहुत सर, कैसे बोलो? हाँ सुनो, आवाज 2 सेकंड के लिए। हाँ बोलो। मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेटिंग फोर्स इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी लाइन। इंटीग्रेटिंग का मतलब ये हुआ
इंटीग्रेट का मतलब जैसे मैं अपना लैपटॉप का एग्जांपल या लैपटॉप का एग्जांपल दे रहा हूं। लैपटॉप में अगर मान लो हार्ड ही रहेगा तो क्या रैम काम करेगा? या सीपीयू नहीं रहेगा तो मदरबोर्ड चलेगा? तो सब पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े। इंटीग्रेट का मतलब एक दूसरे से जुड़े रहना। इंटीग्रेट का मतलब एक दूसरे से जुड़े रहना, ठीक है? तो बिना इंटीग्रेटिंग के आप किसी भी कॉमन गोल को नहीं छू पाओगे। जैसे कंप्यूटर सिस्टम ही है, इसके जब तक सारे कंपोनेंट एक साथ काम नहीं करेंगे तो क्या आपका काम हो पाएगा? एक कार एक सिस्टम है, कार के सारे कंपोनेंट, उसमें हजारों तरह के कंपोनेंट लगे, वो साथ में नहीं चलेंगे। वो सारे कंपोनेंट साथ में नहीं चलेंगे तो क्या कार आपका चलेगा? कार में आपने टायर लगा ली, व्हील लगा दिया, स्टीयरिंग दिया ही नहीं, क्या होगा? वो कार आपका चलेगा? तो इंटीग्रेटिंग मतलब सब कुछ, सब पर्सनल, सारे कंपोनेंट सब साथ में काम करेंगे तो जो आपका कॉमन गोल है, जो आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वहां तक आप पहुंच पाएंगे, तब आपको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर, यस सर। और सर एमआईएस को सर हम लोग और कोई आज समझने में दिक्कत तो अभी बोलो, फिर ये नहीं कि कल बोलना, परसों बोलना, फिर सर को बोलना। अभी बताओ सर एमआईएस को सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं सर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बोलते हैं? मतलब आवाज बहुत हल्ला हो रहा है सर। क्या हुआ? एमआईएस को सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं सर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बोलते हैं? मतलब किसको एमआईएस को सर, मैनेजमेंट बायोस को? सिस्टम को नहीं, एमआईएस को सर से देखो सिस्टम क्यों बोलते हैं? देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसको बोलते हैं, आवाज आ रही है आप लोग को? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर सॉफ्टवेयर विच system software are those software which directly deals with the machine and the hardware. Machine and the hardware is called system software. लेकिन MIS जब आपका सिस्टम, लेकिन MIS तब हम इंस्टॉल करते हैं जब सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर MIS नहीं कहलाएगा, क्योंकि MIS ऑपरेटिंग सिस्टम, दुनिया में जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग नहीं सर, विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और जो काम हम जिस पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जीमेल है, MIS है, वेब एप्लीकेशन दुनिया में जितने हैं सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपको डाउट? सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? क्या हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? जो देखो हमारा सिस्टम इंस्टॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, चाहे व्हाट्सएप है, विंडोज नहीं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जीमेल है, MS ऑफिस है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, दुनिया में जितने वेब एप्लीकेशन है, ERP एप्लीकेशन है, जितने भी लाखों करोड़ों, सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ गए? हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आएगा सर? आपको डाउट? आपको? यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर, लिंकर, मतलब जो हार्डवेयर के साथ काम करे, समझे? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आएगा सर? लिनक्स, हाँ, यूनिक्स भी है भाई। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें डाउट मत रखना कि विंडोज है कि लाइनेक्स है कि क्या। ERP सॉफ्टवेयर कैसे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बस। ERP का यूज किया मतलब? ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो जब सेकंड थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे ना, थर्ड यूनिट, तब बताएंगे। और अनीशा बताइए। कोई प्रॉब्लम है? अभी बताओ, मुझे ओपनली बताओ, तब मुझे भी अच्छा लगेगा। कोई भी बच्चा बताएगा कि मैं नहीं समझा, तो मुझे बताने में मजा आएगा कि नहीं? बोलो।
तो उस क्लास के बच्चे को दिक्कत नहीं हो रहा था, किसी को आप लोग बताए कि दिक्कत हो रहा है, तो ये चीज कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मुझसे आप सबके पास मेरा फोन नंबर भी है, यू कैन आस्क मी फ्रीली, सर ये चीज मुझे दोबारा बताओ, तीसरी बार बताओ, 4 बार बताओ, मैं मना करूंगा तब कोई बोलेगा है। मेरा फोन नंबर सबके पास है, सब कोई भी फोन कर सकता है किसी भी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताओ। Yes, sir. एक problem. अटेंडेंस कोई ऑनलाइन लेके मुझे भेज दो, ऑनलाइन अटेंडेंस लेके कोई बच्चा मुझे भेज दो। Excuse me, sir. पर्चे अटेंडेंस ले लो भाई। Sir, office automation. और अटेंडेंस कोई मुझे भेज दो, मैं ऑफलाइन अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ। यस सर, पर्चे भेज देगा सर। सर पर्चे भेज देगा आपको। भेज रहा है, भेज, एक बच्चा भेज दिया, चलो ठीक है। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव ए नाइस कोई डे सर। प्रॉब्लम तुम लोग को नो सर। ऑनलाइन कोई बहुत समस्या। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। नहीं हुआ।